Hi kids, how are you all? Welcome back to your English classes. I'm your English mentor and guide Ananya and I'm back with a new series. Alright, today we will begin with our class 7 English book. Clear? So children, as we get started, we have the first chapter, that is our Casuarina tree. Alright, this is not a chapter exactly, this is a poetry. It's a wonderful poem which describes the relationship between the poet and the Casuarina tree. Alright, poet और कैसुरीना ट्री के बीच में जो संबंध है बहुत ही खूबसूरती से इसको दर्शाया गया है. Alright, let's get started. In this poem, Toru Dutt describes her intense love for nature. Now here, when I say Toru Dutt, she is the writer of the poem. Alright, she is the writer of the poem. That means she is the poet or poetess of the poem. Alright, this is the name of the poet. Poet is Toru Dutt. Alright, she describes her intense love. Now there is a word called intense. Intense means something which is extreme, है ना, बहुत ज़्यादा. So her intense love for nature, she is a nature lover. She draws inspiration from nature around her surroundings. जो भी उसके आसपास प्राकृतिक सौंदर्य है वो उनसे जो है बहुत ज़्यादा क्या करती है, she takes inspiration, उससे वो प्रभावित होती हैं. तो इसीलिए उन्होंने ये जो है पोएम लिखी है जिसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से नेचुरल ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है. Here we find a beautiful description of nature and her love for Casuarina tree. So in this poetry, basically we are going to study about the relationship between her and the Casuarina tree. How does she associate with the Casuarina tree? She had a Casuarina tree just near her house, and throughout her childhood she has observed it, and what all she observed that she has described in the poetry. Okay. This tree reminds her old friends and their company. So now Toru Dutt is a grown-up person. अब वो काफी बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन जब भी वो कैसुरीना ट्री को देखती हैं तो उनकी सारी बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती है ना बच्चों. ऐसा ही होता है ना, जब हम किसी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो एकदम से हमारी जो पुरानी मेमोरीज हैं उनको एकदम से हमारे सामने ला देती हैं. राइट, हम जो है बहुत ज़्यादा उसमें हो जाते हैं. क्लियर? Like a huge python winding round and round, the rough trunk indented deep with scars. Now children, if you can see, this is a picture drawn which is Casuarina tree. ये जो picture है ये Casuarina tree का picture है. ठीक है, इसको हम इंडियन ओक के नाम से भी जानते हैं. So if now you see a bit carefully, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, so you will see this snake-like structure. Can you see these green straight snake-like tendrils, है ना, ropes की तरह जो लपेटे हुए हैं. This is a climber. ठीक है, this is a climber. In your EVS books, you must have studied about various kinds of plants, creepers and climbers. सो क्लाइंबर्स वो पेड़ होते हैं, वो पेड़ पौधे जो कि बेसिकली दूसरे ट्रीज के सहारे ग्रो करते हैं. वो दूसरी ट्रीज में लपेट लेते हैं खुद को, वो खुद खड़े नहीं हो पाते, तो दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड डायरेक्टली. ठीक है, सो एज यू कैन सी दिस कैसुआरिना ट्री हैज अ थिक ट्रंक. काफी मोटा तना है इसका, थिक ट्रंक है, बट इट इज सराउंडेड बाय अ क्लाइंबर which is already taking round and round through its trunk, and it is hugging it like a python. What is a python? Python is a type of snake. ठीक है, तो जो पोएट है वो बोल रही है कि मेरा जो घर के पास कैसुआरिना ट्री है उसको किसने, क्लाइंबर ने इस तरह से जकड़ रखा है जैसे मानो एक शक्तिशाली विषैले पाइथन सांप ने उसको जकड़ के रखा हुआ हो. ऑलराइट, up to its very summit near the stars. Now this Casuarina tree is very high, very tall,
एंड ये जो क्लाइंबर्स है, एज यू कैन सी, नीचे से होते होते बहुत हाइट, मतलब सी द हाइट ऑफ द ट्री इज हियर एंड द क्लाइंबर्स आर ऑलमोस्ट रीचिंग नियर इट्स हाइट. तो द पोएट इज सेइंग कि ये जो कैसुलिना ट्री में जो क्लाइंबर्स ने लपेट रखा है ट्री को, वो क्लाइंबर्स धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते कहाँ जा रहे हैं? ऑलमोस्ट दे आर टचिंग द स्काई. ऐसा लग रहा है जैसे वो स्टार्स को ही टच कर लेंगे. ऑलराइट. No other tree could live, but gallantly the giant wears the scarf and the flowers are hung. So she says कि why I love Casuarina tree so much, because it is, for me it is a symbol of courage. Poet के लिए Casuarina tree एक symbol of courage है. वो कहती है कि अगर ऐसा कोई और पेड़ होता तो वो इतने दिनों तक इतनी ज्यादा टाइट एम्ब्रेस को पकड़ के नहीं रख सकता. अगर आपको कोई बहुत देर तक जकड़ के रखे, आपका दम घुटने लगेगा ना, आप जिंदा रह पाओगे? विल यू सर्वाइव? नहीं कर पाओगे, आपको दर्द होगा, आप परेशान हो जाओगे. ट्रीज आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, राइट? सो दे ऑल्सो माइट बी हैविंग सम फीलिंग्स. क्लियर? सो तोरू दत्त सेज कि अगर कोई और पेड़ होता तो शायद वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता, लेकिन कैसुरिना ट्री इतना ज्यादा ब्रेव है. ठीक है, यहाँ बट गैलेंटली मीन्स ब्रेवली. सो इट सेज कि कैसुरिना ट्री इज सच अ ब्रेव ट्री, इतना ज्यादा साहस डिस्प्ले कर रहा है कि इतने सालों से क्रीपर उसको लपेटे हुए है, जकड़े हुए, बट स्टिल इट इज ग्रोइंग, इट इज फ्लरिशिंग एंड ग्रोइंग. ठीक है, उसकी ग्रोथ को ये क्रीपर रोक नहीं पाया है. एंड दो दिस क्रीपर हैज गिवन स्कार्स ऑन इट्स बॉडी, ये जो क्रीपर है ये इतना टाइटली इसको जकड़े हुए है कि इसकी ब्रांचेस पे स्कार्स आ गए हैं. स्कार्स मीन्स निशान पड़ गए हैं ब्रांचेस पे. ठीक है, जहां जहां से क्रीपर ने लपेटा हुआ है वहां वहां से क्या हो गए हैं? निशान पड़ गए हैं ट्री में. स्टिल इट इज ग्रोइंग एंड इट इज हैप्पीली सर्वाइविंग. ऑलराइट. एंड नॉट ओनली दैट, वो ग्रोथ करते हुए फर्दर बर्ड्स एंड फ्लावर्स को भी जगह दे रहा है. मतलब फ्लावर्स भी ब्लूम कर रहे हैं ट्री में, एंड इट इज ऑल्सो गिविंग हाउस टू द बर्ड्स टू बिल्ड नेस्ट्स ऑन देम. In crimson clusters all the bough among. See, in crimson clusters, clusters means group. ठीक है, clusters means group and crimson is color. ठीक है, crimson is color. So the flowers of the Casuarina tree are crimson in color. जो फ्लावर्स होते हैं ना कैसुरिना ट्री के, वो क्रिम्सन कलर के होते हैं और वो ग्रुप में, बहुत सारे ग्रुप में ग्रो करते हैं. दैट इज व्हाई दे आर सेइंग क्लस्टर ऑफ क्रिम्सन्स. ठीक है, तो ये जो बंच ऑफ फ्लावर्स हैं ये अलग अलग एरियाज में, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, ऐसे अलग अलग पूरे पेड़ में भरे हुए हैं. एंड बिकॉज ऑफ द हेवी लोड ऑफ द फ्लावर्स एंड द लीव्स एंड द ब्रांचेस, द टॉल ट्री बाउज डाउन, वो झुक गया है. ठीक है, लेकिन स्टिल इट स्टैंड्स प्राउडली, कहीं से टूटा नहीं है. ठीक है, इट इज स्टैंडिंग प्राउडली. wherein all the day are gathered bird and bee, and oft at night the garden overflows. So what does the poet says? Ki it has been often observed that throughout the day and night, इस पे क्या है? birds and bees, क्योंकि जहाँ पे flowers होंगे वहीं पे birds and bees आना पसंद करेंगे. bee इसलिए because they have to collect nectar, and birds इसीलिए क्योंकि उनको भी हरे भरे पेड़ों में अपना घोंसला बनाने में अच्छा लगता है ना. तो जो बर्ड्स हैं, जो उनके बेबीज हैं, प्लस जो बीज हैं, वो सारी दिन भर इसको घेरे रखती हैं. एंड रात को इस पेड़ में इतने फूल हो जाते हैं, इट इज ओवरलोडेड दैट मेनी ऑफ द गार्डन, लाइक गार्डन एरिया, इट ओवरफ्लोज विथ फ्लावर्स. पेड़ पे तो बहुत ज्यादा है ही, प्लस कई फूल जो है ड्यू टू एक्सेस ग्रोथ नीचे भी गिर जाते हैं. तो जो गार्डन है वो क्या है? फूलों से पूरा भर जाता है. इट गेट्स ओवरफ्लो. सो इन द फर्स्ट स्टैंजा, Toru Dutt basically explains how wonderfully the Casuarina tree grows in a mighty tree, in a beautiful tree which gives shelter and happiness to the people around it.
even though it is surrounded by a creeper which has hold it tightly like a python, and it is holding it in a such a way that it has left scars. बहुत सारे scars हैं ट्री के अपने बॉडी पे, बट फिर भी ट्री ग्रो भी कर रही है और साथ ही में ट्री क्या कर रही है, फ्लावर्स भी दे रही है, घर भी दे रही है. अब थ्रू दिस स्टैंजा एक डीपर मीनिंग, कैसुरिना ट्री का ब्यूटी तो एक्सप्लेन किया ही है पोएट ने, बट फर्दर हमें एक शिक्षा दी है कि वी शुड ऑल्सो टेक अ लेसन फ्रॉम द कैसुरिना ट्री. ब्यूटी तो है ही, कैसुरिना ट्री ब्यूटीफुली जो है पूरे नेचर को सुंदर कर रही है, वो तो अपने आप में है ही एक बात. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो व्हाट इज कैसुरिना ट्री आस्किंग अस टू डू? क्या सीख रहे हैं हम कैसुरिना ट्री से? हम कैसुरिना ट्री से ये सीख रहे हैं कि हमारी लाइफ में भी ये जो क्रीपर है, जो पाइथन की तरह ट्री को जकड़े हुए, तो हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी बाधाएं, विपत्तियां आती है जो हमें ग्रो करने से रोकती हैं, हमें जकड़ के रखती हैं. कई ऐसी परेशानियां हैं जो शायद हम पे एक डीप इम्पैक्ट छोड़ दें. जैसे कैसुरिना ट्री को लपेटे हुए है एक पाइथन, और पाइथन की तरह एक क्रीपर. पाइथन तो नहीं है, इट इज द कंपैरिजन इज विद अ क्रीपर. ठीक है ना, क्रीपर को स्नेक के साथ जो है कंपेयर किया है और उसके पकड़ के रखने की वजह से निशान पड़ जाते हैं. उसी तरह कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं हमारे जीवन में भी जिनके निशान हमारी लाइफ में रह जाते हैं, विच लीव अ स्कार. कोई बैड मेमोरी हमारे दिल पे घर कर जाती है या कुछ, बट देन वी शुड नॉट स्टॉप देयर. हमें वहीं रुक नहीं जाना चाहिए, हमारी ग्रोथ को नहीं रोक देना चाहिए. इंस्टेड वी शुड ऑल्सो बी लाइक अ कैसुरिना ट्री. हमें बाधाओं, विपत्तियों को पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए. जैसे कि कैसुरिना ट्री भी फ्लरिश कर रही है, ग्रो कर रही है, और खुद को दर्द होते हुए भी वो बर्ड्स को भी घर दे रही है, बीज को फ्लावर्स दे रही है, ठीक है ना, और नेचर को ब्यूटिफाई भी कर रही है. ऑलराइट, तो हो सकता है कि हमारी लाइफ में बहुत तरह के दुख हो, लेकिन हमें उन सब दुखों को दूर हटा के भूलने की कोशिश करके आगे बढ़ते रहना चाहिए. लेट्स मूव फर्दर with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from our tree when men repose. When first my casement is wide open thrown, at dawn my eyes delighted on its rest. So now, in these lines, the poem describes the beauty of the Casuarina tree. The poet says that the Casuarina tree changes its beauty from season to season and time to time. है ना, अगर हम कैसुरिना ट्री को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो कैसुरिना ट्री भी जो अपना ब्यूटी है या अपना जो रूप है वो बदलता रहता है. जैसे कि जब शाम को लोग घर लौट रहे हैं तो कैसुरिना ट्री में जो बर्ड्स हैं या बर्ड्स के जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे बहुत ही सुरीली आवाज में चहचहा रहे हैं, विच इज गिविंग जॉय and relaxation to the men who are reposing, yani the men who are resting or who are returning from the work. Whereas when first my casement is wide open thrown, yani jab morning mein, yani dawn means the sunrise, okay, जब सूरज की पहली किरणें उगती हैं और धीरे धीरे अर्ली मॉर्निंग आवर्स में पोएट अपनी आंखें खोलती है, so first thing she observed is the beautiful Casuarina tree, and that scenic beauty is a delight to her eyes. It gives her immense joy and pleasure. वो जो खूबसूरती है ट्री की देख के अर्ली मॉर्निंग आवर्स में कि हल्की हल्की सी सनरेज आ रही हैं, ट्री जो है वो धीरे धीरे सूरज की रोशनी में ग्लो करना शुरू कर रहा है, गोल्डन सनलाइट में हरी हरी पत्तियां फ्रेश फ्रेश लग रही हैं, छोटी छोटी जो चिड़िया है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली उठ रही हैं, चहचहाना शुरू कर रही हैं. सो दैट इज अ ब्लिस टू ऑब्जर्व. वो जो ब्यूटी है वो इतना सुंदर है कि वो मन मोह लेता है. ठीक है. Sometimes, and most in winter, on its crest, a grey baboon sits statue-like alone, watching the sunrise, while on the lower boughs, his puny offsprings leap about and play.
So in the next line, the seasonal change has been described in the poetry. Now, from the summers, it turns into winter. As from the summers, the season changes into the winter. So, during the winters, what happens? A baboon, a grey baboon, you understand? The baboon is grey in color and it sits on the higher branches of the tree. वो जो बबून है वो ऊंची टालियों पर बैठ जाता है और उसको दूर से देखने में लगता है जैसे सिटिंग लाइक अ स्टैचू. All right, it is sitting like a statue and it is waiting for the sunrise to occur. Sunlight के लिए वेट कर रहा है और जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती है, क्योंकि विंटर्स में यूजुअली क्या होता है, सूरज लेट निकलता है ना. जब सूरज तो अपने टाइम पे निकलता है बट ड्यू टू द कोल्ड एंड द फॉग वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट, है ना, ठंड की वजह से. तो हम ऐसा मानते हैं कि सूरज थोड़ा लेट निकला है, थोड़ा टाइम लेके निकला है. So it is the grey baboon keeps on waiting कि when the sun will come and when the sun rays will hit me, and on the lower boughs of the tree यानी lower branches, है ना, on the lower branches plays its funny offsprings. मतलब ये जो baboon के छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं नीचे के branches में, कैसुलिना ट्री के नीचे के branches में ये लोग खेल रहे हैं. And far and near कोकिलास hail all the day. एंड फार एंड नियर मीन्स और दूर और पास में सारे दिन कैसुलिना ट्री के चारों तरफ जो है कोयल, कोकिलास का मतलब है कोयल. कोयल बर्ड बहुत सुरीली होती है, बहुत मधुर गाना गाती है. तो दैट बर्ड कीप्स ऑन सिंगिंग थ्रू आउट द डे. एंड टू देयर pastures went our sleepy cows, and in the shadow on the broad tent cast. So now as the day सरेंडर्स मीन्स जैसे जैसे दिन खत्म होना शुरू होता है धीरे धीरे जो काउज हैं, गाय जो है वो कहाँ लौटती है, वो घर लौटती है. और ये जो ट्री है ये भी क्या हो जाता है, जो पहले सनराइज से पूरा कवर था धीरे धीरे शैडो में चला जाता है, यानी धीरे धीरे क्या होता है, डार्कनेस में कवर होना शुरू कर देता है. बाय द होरी ट्री सो ब्यूटिफुल एंड वास्ट, द वाटर लिली स्प्रिंग लाइक स्नो एमास्ट. सो शी सेज कि नियर बाय दिस ट्री there are ponds where water lilies spring, where water lilies are there, and it seems that the entire area has turned magical. पूरा जो एरिया है वो कैसा हो गया है, मैजिकल है. So in this stanza basically the poet has described the seasonal change, and according to the seasons and the time of the day the Casuarina ट्री सीनिक ब्यूटी ऑल्सो चेंजेस. यानी कैसुलिना ट्री का भी जो बिहेवियर है, ट्री तो अपनी जगह ही खड़ी है लेकिन ट्री में जो काम हो रहा है यानी बर्ड्स का या ब्यूटिफिकेशन का, वो सीजन टू सीजन ऑब्जर्वेशंस जो हैं चेंज हो रहे हैं. तो चिल्ड्रन आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ऑलराइट, सो इट्स अ ब्यूटिफुल पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द पोएम ब्यूटिफुली. नाउ लेट्स मूव फर्दर, but not because of its magnificence. Now children, there is a word known as magnificence. As you can see, magnificence means due to its growth, its enormous size. Okay. Dear is the Casuarina tree to my soul. So now the poet says कि ऐसा नहीं है क्या कैसुलिना ट्री इतना बड़ा है, इतना सुंदर है, इसीलिए मुझे वो दिल के इतना नजदीक है, या इसीलिए वो मुझे इतना प्रिय है. ऐसा कुछ भी नहीं है. पेड़ तो बहुत सारे घने होते हैं, बहुत सारे बड़े होते हैं, पर इन पर्टिकुलर कैसुलिना ट्री ही मुझे क्यों पसंद है, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि इट इज अ मैग्निफिसेंट ट्री, इट्स अ ह्यूज ट्री. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बीनीथ इट वी हैव प्लेड दो years may roll. So she says, now I am a grown up girl. अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, बट बचपन की मेरी यादें इस पेड़ से जुड़ी हुई हैं. इस पेड़ के घने छाव में, बीनीथ मीन्स अंडर, ओके, बीनीथ यानी इस पेड़ के छाव के नीचे बैठ के इसके चारों तरफ इर्द गिर्द मैंने और मेरे दोस्तों ने बहुत सारे सालों तक जो है एंजॉय किया है. हमने गेम्स खेले हैं, हमने बैठ के बातें की हैं, है ना. तो बहुत सालों पुराना रिश्ता है मेरा कैसुलिना ट्री के साथ. ओ स्वीट कंपेनियंस लव्ड विद लव इंटेंस, for your sakes shall the tree be ever dear. So she says,
अपने दोस्तों को याद करके remembering her childhood friends, Toru Dutt says कि oh my dear companions, now we all have grown up and everybody is busy in their own life. Everybody is somewhere else. They are all are scattered. But you, because of the bond that I share with you and because of our childhood memories, the Casuarina tree will be always close to me. तो पोएट जो है वो कहती है कि इसलिए नहीं कि कैसरीना ट्री बहुत सुंदर है या बहुत बड़ी है, वो तो उसकी अपनी क्वालिटीज हैं, बट वो कैसरीना ट्री मेरे लिए बहुत इसलिए खास है। क्यों? क्योंकि ये मेरी बचपन की यादें मुझे याद दिलाता है। इसको देखते ही मेरी जो बचपन की यादें हैं वो सब एक साथ वापस आ जाती हैं और मुझे लगता है जैसे मेरे दोस्त कहीं ना कहीं मेरे पास हैं। Blent with your images, it shall rise in memory till the hot tear blinds my eyes. तो she says कि जब भी मैं इस कैसरीना ट्री को देखती हूँ, मेरी वो जो हमारी बचपन की जो यादें हैं वो सब ताज़ा हो जाती हैं और मैं उन यादों में खो जाती हूँ जब तक कि याद करते करते मेरी आंखें खुशी से नम ना हो जाए, यानी याद करते करते मैं रो ना दूँ। कई बार क्या होता है, जब हमें बहुत खुशी होती है या बहुत दुख होता है, दोनों ही केसेस में हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना। तो जब हम बहुत किसी अपने को या बहुत अच्छी मेमोरीज को याद करते तब भी खुशी के आंसू आ जाते हैं, और जब हम किसी को मिस करते हैं तब भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। तो पोएट अपने दोस्तों को मिस भी कर रही है, साथ में अपने वो खुशी के पल भी याद कर रही है जो उसने बचपन में अपने दोस्तों के साथ बिताए हैं। तो कहीं ना कहीं याद करते करते वो तब तक उन यादों में रहती है जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते। What is dirge like murmur that I hear, like the sea breaking on a single breach? It's a tree's lament, an airy speech that happily to the unknown land my reach. So she says कि I don't know how, but I correlated so much with the Casuarina tree कि जब भी मैं इसकी तरफ देखती हूँ मुझे सारी वो घटनाएं, सारी वो मतलब इवन आई कैन हियर द मेमोरीज, जो बातें मैं अपने दोस्तों के साथ करती थी या मेरे दोस्त मुझे जिस नाम से बुलाते थे या जिस तरीके से मुझे बात करते थे, हमें खेलते खेलते क्या क्या बातें करते थे, सब वो किस्से कहानियां ऐसा लगता है जैसे मेरे कानों में गूंज रही हैं और कैसरीना ट्री मुझे आवाज दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इनवाइट कर रही है कि आओ वापस से वो बचपन की पल दोबारा जी लो। ऑलराइट, और ये जो यादें हैं मुझे ये कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देती है, कंप्लीटली एक नए जहां में, एक मेमोरी लैंड में ट्रांसपोर्ट कर देती है जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। हम सभी बचपन की यादें जब याद करते हैं हमें सिर्फ खुशी होती है ना। बचपन यानी चाइल्डहुड इज द बेस्ट फेज ऑफ अवर लाइफ। बचपन में हमने कितना मजा किया है ना अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सबसे अच्छा दौर होता है हमारा। तो सेम थिंग Toru Dutt says कि whenever I see the tree and I undergo this memory, I am transformed into a different person. I go travel to down the memory lane, है ना। मुझे अपनी याद ऐसा लगता है मैं यादों के सफर पे निकल पड़ी हूँ और किसी और ही जगह पे चली गई हूँ जहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी बचपन की यादें हैं, और उन्हें याद करके मैं बहुत ज्यादा क्या करती हूँ, खुश हो जाती हूँ और मेरे मन को शांति मिलती है। Alright, so children, this was the poetry. It's a beautiful poem wherein the poet has expressed not only the beauty of the Casuarina tree but also shared the memories that she has spent her childhood years in with the presence of her friends near the Casuarina tree, and whenever she observes this tree she remembers all those memories, she gets the flashback of her childhood and she gets into nostalgia and again gets happy and emotional. So I hope children you have understood the poetry. Now let's move towards the exercises. So children, let's start. Option number 8, take the correct option. The Casuarina tree is like a huge python, elephant, tiger or lion. Children, the Casuarina tree is like a python. What climbs on the tree? Girl, creeper, child, snake, or so we will say it's a creeper that climbs on the tree. Next, the flowers are hung in red, blue, crimson, black. So flowers are of crimson color. मैंने बताया था ना, the flowers are of crimson color.
Fourth one, and to their pastures went out our sleepy goats, sheep, buffaloes or cows. So pastures में कौन जाता है? Goats, sheep, buffaloes or cows. So we have studied cows. Fifth, the water lilies spring like dash and was snow, fire, soil, air. So answer is snow. White color के होते हैं वो water lilies, तो ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ snow ने cover कर लिया हो. Sixth, the poetess loves the dash tree. कौन से ट्री को पसंद करती है पोएटिस? पीपल, कैसुरिना, नीम और बनियान, दैट इज कैसुरिना ट्री. ओके, सो विद दिस वी वाइंड अप विद योर फर्स्ट सेगमेंट. पहला जो हमारा एक्सरसाइज है वो डन हो गया है. लेट्स मूव फर्दर. मूविंग फर्दर वी हैव एक्सरसाइज नंबर बी. यू हैव सर्टेन लाइंस फ्रॉम द पोएम्स. है ना, स्टैंजा में से कुछ लाइंस पिकअप करके दे दिए हैं. यू हैव टू कंप्लीट द लाइंस. नाउ फॉर दिस I am not going to guide you. You would be doing these lines on your own. Just flip back the pages. हमने अभी अभी कविता पढ़ी है, आप इसको पीछे pages turn करेंगे and you would be completing these lines on your own children. Now let's go to question number C, that is answer the following questions. है ना? We will take each and every question. हम discuss करेंगे and then you can do these questions in your notebook. So first one, what does the casuarina tree remind the poetess of? The casuarina tree reminds the poetess of her childhood memories. The childhood days when she used to watch the casuarina tree and its beauty, and also watch the casuarina tree undergoing the seasonal changes. Further, the poet also remembers her childhood memories with her friends, the way she played with her friends and spent time under the casuarina tree. Okay. तो पोएट को दोनों चीजें याद आती है, जो पोएटेस है यानी जो कवित्री हैं उनको दोनों चीजें याद आती है. एक चीज कि कैसुरिना ट्री किस तरीके से अलग अलग सीजन्स में अलग अलग चेंजेस जो पोएट ऑब्जर्व करती है. एंड सेकेंड थिंग, शी रिमेम्बर्स द चाइल्डहुड डेज, कि बचपन की जो दिन है वो याद आते हैं उसको, कि किस तरह से कैसुरिना ट्री के चारों तरफ जो है वो लोग इकट्ठा होकर बात जाते थे अपने दोस्तों के साथ और खेलते थे और घूमते थे. ठीक है. Now second one, describe the casuarina tree. Casuarina tree को हमें describe करना है. Casuarina tree is a giant, huge tree like a python, which is surrounded by a creeper. All right, the creeper is hugging it tightly. उस creeper ने उसको जकड़ रखा है, and because of the tightness, there are certain scars on the tree trunk. Tree trunk पे बहुत सारे scars हैं. It grows to a huge green tree, है ना, which has crimson flowers, and it also is a house for numerous birds and bees. बहुत सारे birds and bees के लिए casuarina tree घर भी है. All right. Then third one, what gives joy to the poetess? क्या joy देता है? The poetess gets joy in watching the casuarina tree and remembering her old childhood memories. Clear? Fourth, who has composed the poetry? Yeah, who has composed the poem? Beta, composition means who is the writer, the someone who has written the poem. So the poet. Okay, the poetess. The poetess of the poem is Toru Dutt. ठीक है? Or you can write the poem has been composed by Toru Dutt. Or या फिर और simple कर लो, who को replace कर दो. You can write Toru Dutt has composed the poem. All right, children. So with this, we have finished the first poetry of your English class 7 book. I hope children you enjoyed the session today. बहुत ही खूबसूरत कविता हमने पढ़ी. We have studied a beautiful poetry with a beautiful message indeed. All right. So with this we come to end of today's session. I hope you all will do your work properly and you won't find any difficulty in understanding the chapter. I would be meeting you soon with some next interesting chapter. Alright, so stay tuned for the new video. Bye bye and take care.